the first line of each you can just. So difficult it is if I don't have a paper in hand. Ma'am, I will be starting. A photo is there. It should be up. How many members are there? Ma'am, 5 to 6 members are in last time. Good morning, parents. Good morning, friends. We are here to start a virtual live webinar for our parents and well wishers. We are waiting for the audience. Please bear with us for 5-10 minutes till we are able to settle the audience virtually, and then we will start. So please bear with us. Put it on paper and write and give first. देख रहे हैं ना उन लोग वहाँ पे 3 मिनट का लैग होता है Smooth? Yeah, nice. Perfect. Good, good, very good. So we have a support team. Nikita ma'am and Siddesh, our ex-student, and the speaker for today is Mrs. B.G. Tushar. She is a pioneer family sort of, and she has पुढे live चालू आहे ना पुढे she has been with us. She has been with us, attached to school for so many years, and she has reached out to so many parents. So we are really thankful to Viji ma'am to be attached with our institution and reach out to everyone. So I'll be giving her brief introduction, but I'm just waiting for the audience to settle down, and then we can start the session at a faster speed. And I would really like to welcome all the parents for giving their valuable time for this virtual webinar, and I'm sure you all will gain a lot from today's webinar. So it will be very good takeaway home for everyone, and all the viewers. We would love your feedback after the session so that it will be a base for improvement for us also. It's our first trial, so we hope we are successful in our trial, and we will have many more such trials to reach out to you all due to this COVID pandemic scenario. Though we are trying to come out of it now, but yet we are not able to meet in public uh, physical manner. So therefore we have tried to arrange this seminar in a virtual webinar point of view. So I'm just waiting for the audience to join. So please join at the earliest. How many are there? I want to see where. 50 people has joined. Good. So we'll just wait for 2-3 minutes more. We are getting audience joining the webinar, so please bear with us for 2-3 minutes more, and we will be able to deliver our best. Good, very good. So please bear with us. I'm seeing the numbers are rising, and that is a good sign. And 2-3 minutes more, we will wait till the audience is little fully we are able to start the scene at a better space, and maybe they may be taking time to join. So
2-3 minutes more we will just give them time to join, and then we will start our webinar in a better manner. We are in the school campus, in the office, so that that feel of school is I mean, you all are able to feel okay, you all are in school, you all are able to have good memory for it, because in person you all are not able to come, so at least that feel of school you are getting it. So I'm just waiting for 2 more minutes, and then we start with the session. How many are there? 56. Just tell me. 52. 50? Watching. Okay. Yeah, it's mute. It's mute. Nikita, how do I see the comments on the side in the computer itself, so then I can just answer them? Okay. On this one. I think so. नहीं यहाँ पे दिखेगा. Siddesh, we will start. Yes, yes, Ah. yes. Okay, put it. Parents, I would like to start because already 5-8 minutes have passed. Those who can join little later, no issues. So, a warm welcome to all of you for joining for this webinar. Parents, well-wishers, our pioneer family members, welcome to all of you for this webinar. And we have a eminent speaker, that is Mrs. Viji Tushar. Mrs. Biji Tushar, she's an eminent speaker for today, and I would like to give you her brief introduction. Our topic for today is transformational parenting, post COVID-19. We are assuming that COVID scenario is subsided, and we are trying to come back to normal scenario. So how we will be facing the new normal, we have to see those circumstances. So now I would like to introduce BG ma'am. BG ma'am is attached to our school from many years, and she has inspired our parents fraternity in a very effective manner, and students are also inspired with her talks. So I would like to give a brief introduction of BG ma'am. She's an inspirational speaker, counselor, and psychotherapist. She's also a life designer, so that's a very plus point. She's a ex-vice principal of Vivek Vidyalaya. She frequently lectures in organizations and institutes such as RTI, Audit Bhavan, Fashion Mall, etc. So see the laurels she has gained throughout her journey. She is a founder. She has founded Management Me, which is a personal development organization which helps the students, the uh, industrial corporates to understand the psychological and emotional needs. She has completed 252 workshops, and this is her 253rd workshop. We are happy to have her, and this webinar we have arranged through our PTA. So I'm thankful to PTA also for always encouraging for everything, and our management also uh, inspired us to have such webinars for our parents. So we are thankful to our management, our school team, and each one of them. Thankful to Siddesh and Nikita for being the back team of this webinar. So now I switch on back to Biji ma'am and let her give her talk on our topic, transformational parenting post COVID circumstances. So please go ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction.
whenever I come to Pioneer School, it's like family, as Madam has already told. So it's like a wonderful feeling, and I must say the hospitality here is so superb that I mean, Atiti Devo Bhava, that kind of a feeling is what I get here. So my gratitude to the Pioneer Education Trust for giving me this opportunity to speak to all of you beautiful souls. हम पिछले साल भी मिले थे और उसके पहले भी मिले थे, तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ गए हैं और अच्छा लगता है कि जो मैंने कोशिश की थी कि हम ज़िंदगी को मज़े से जिए और रिश्तों को अहमियत देकर आज के ज़माने में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपका जो भी इश्यूज होगा। जैसे ही मैं एक एक पार्ट ख़त्म करूँगी, मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करूँगी। तो थैंक यू ऑल सो मच एंड वेलकम टू ट्रांसफॉर्मेशनल पेरेंटिंग पोस्ट कोविड। कोविड का वैक्सीन भी अभी आ रहा है, तो हमको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर ये 8-10 महीनों में जो हुआ है, इसका असर पहले ही रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे इश्यूज जो होता है सब साथ में रहकर एक सिस्टम बनकर, एक सोशल यूनिट बनकर आगे जाने में बहुत सारे दिक्कतें आती है। तो वो क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से बच्चों के ऊपर भी असर होता है। तो हम कुछ इन बातों पे गौर करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें से हम किस तरीके से बाहर आ सकते हैं और ज़िंदगी जो इतना हसीन है, इस हसीन ज़िंदगी को हम किस तरह से मज़े से जिए, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं है। जो है हमारे पास वो आज ही है। और दूसरी एक बात, आप जानते हैं ये कोविड की वजह से बहुत सारे फैमिलीज में डिस्टर्बेंसेस हुई है, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो हमको जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, इसको बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है हमारे विचारों को सकारात्मक बनाएं। जैसे ही हमारे विचार सकारात्मक होंगे, वैसे ही हमारी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सकारात्मक होने के कारण आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो अगर आप गलत सोचोगे तो आपकी पावर कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए, तो ये मैं कह रही हूँ कि हमको हमारे विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना है। Try to see the positive in everything, and it is only positive that will come to you. हम देखते हैं कि कोविड के वजह से बहुत क्या बोलते हैं, बेचैनी होते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि रोज हम वही चेहरे देखते हैं। पहले काम पे जाना था तो कम से कम फादर और मदर घर के बाहर होते थे, बच्चों को थोड़ी सी प्राइवेसी मिलती थी, या एक दूसरे को 24 आवर्स देखना, या कुछ लोगों के मन में ये शब्द आता होगा कि झेलना पड़ता है। उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। तो जब 3 या 4 या 5 टाइप ऑफ पर्सनालिटी, अगर हम फैमिली डायनामिक्स में देखेंगे तो 5 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होते हैं। वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, तो देखते रहिएगा। तो ये 5 अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज एक साथ में एक घर में रह रहे, कभी कभी घर भी काफी छोटा होता है, तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से हमारी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए और हम आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, ये क्या 5 पर्सनालिटीज है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ,
और हम इनको समझ के हमारे अंदर जो खामियां हैं इनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन पैटर्न को कैसे हम सुधार सकते हैं, ताकि हम एकजुट होकर एक फैमिली की तरह रह के हर एक इंसान की पर्सनालिटी इवॉल्व हो जाए और ग्रो हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान अगर रुक जाता है या रुकने का नाम होता है मौत और चलने का नाम होता है जिंदगी। तो बहुत बार जिंदगी में हम रुक जाते हैं ईगो के वजह से, या हम अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। या तो ईगो होता है, मैं जो कहूँ यही सबको करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो वी आर एट अ लॉस ऑफ कंट्रोल। इसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि ये ईगो इश्यूज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप्स में दरार आने के लिए, तो प्लीज चैट में आप लिखिए यस या वाई। सिर्फ अगर वाई लिखेंगे कि ईगो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में दरार आती है। ईगो इज the prime reason for the break off of relationships or relationships getting spoiled. Then please write yes. अगर आपने why लिखा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने why लिखा है, तो आप अग्री करते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सबको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है, पर हम वो एक्शन लेते नहीं हैं। जो भी वजह है उस वजह को आज आपको ढूंढना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेक्चर का पूरा फायदा उठाए, तो आपके पास एक पेन और एक पेपर आप लेके बैठिए। तो आप कुछ बातें लिख सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप एक बुक और एक पेन आपके पास रखेंगे या पेंसिल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आगे हम कुछ एक्टिविटीज भी करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस एक्टिविटीज को हमारे साथ करिए। सो रिलेशनशिप्स अगर आप देखेंगे, इम्पेशंस की वजह से टूटते हैं, या डाउट की वजह से टूटते हैं, या देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या लैक ऑफ स्पेस, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, या जेलसी होती है। अभी विमेन भी काम करने लगे हैं, तो वो भी कमाने लगे हैं, तो थोड़ा सा ईगो वहाँ पे भी आ जाता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फेथ भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेनेशंस बहुत मांगे जाते हैं। और फिर कभी कभी विमेन को भी ऐसे लगता है कि हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। बट बिलीव मी, आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितने भी ऊंचे ओहदे पे हो जाए, आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। शादी में कॉम्प्रोमाइज के बिना नहीं चलती आगे गाड़ी, आपको एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा। सो मेन एंड विमेन बोथ हैव टू कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड। और अभी लॉकडाउन में तो आपने सीखा ही होगा, ऑल मेन एंड विमेन टुगेदर आर डूइंग ऑल द वर्क एट होम। जैसे कंपनी में हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है, एक कुकिंग डिपार्टमेंट होता है, वैसे तो आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया ही होगा। तो अब ये चीज़ों को हमको आगे इसी तरह से ले जाना है कि हर एक इंसान जो फैमिली में है अपनी अहमियत को समझ के और दूसरों की अहमियत को समझकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। और लॉकडाउन की वजह से घर पे बहुत सारे सिस्टम्स बने हैं, हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। तो अगर हम पॉजिटिव साइड देखेंगे तो हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए, और उस डिसिप्लिन और उस सिस्टम के वजह से थोड़ा बहुत एक होम्योस्टैटिस रहता है, मतलब एक लेवल होता है जिससे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो द करंट सिनेरियो वी सी, ये रिलेशनशिप्स बहुत किस वजह से टूट रहे हैं, और अगर इनकी वजह हमको समझ में आए और फिर हम सामने वाले को ना देखकर अपने आप को देखकर जो बदलाव लाना है आप ही को लाना है। बिकॉज गांधी जी हैज सेड, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो
तो वर्ल्ड में जो चेंज आप लाना चाहते हैं, आप घर पे जो चेंज लाना चाहते हैं, पहले आपसे शुरुआत कीजिए. सो एवरीबडी कैन राइट इन द चैट, आई एम द चेंज दैट आई वांट टू सी. थोड़ा लंबा है. आई एम द चेंज दैट आई वांट टू सी. अब लिख सकते हो, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ अग्री कर रहे हैं, तो हम और आगे बढ़ते हैं. सो ये रिलेशनशिप्स को हम समझकर हेल्दी और बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. हम पहले तो हमारा विचार बदलते हैं और हम ये देखते हैं कि हम उन विचारों को किस तरह से सकारात्मक बनाकर उन विचारों को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें. इसकी अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर देखना बहुत आसान है, पर लेक्चर में जो कहा गया है उसको अगर जिंदगी में अमल करोगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा. आपको एक केस स्टडी मैं बताती हूँ, जस्ट एक ही मिनट में. आई नीड सम हेल्प. Can you just show me the comments that are coming here so I know that it's happening? On this side it will be seen. No, wait for 2 minutes. I will just do it. All right. So shall I continue? Yes, ma'am. You can continue. The camera is on, ma'am. You can speak. Yeah. All right. So देखो, अभी जो मैंने किया ना कि मुझे मदद की ज़रूरत थी, तो मैंने उससे कहा कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है. क्या ज़िंदगी में आपने मदद ली है जब आपको ज़रूरत थी, या आपने अपने ईगो से अपने नीड को ख़त्म किया है? One question to reflect. So one of the reflecting questions that you can reflect after this lecture is, have I asked for help? Asking for help is not a matter of cowardice. It's a matter of courage, क्योंकि you are asking for help. आप जब भी बोल रहे हैं कि मुझसे ये बात नहीं हो रही है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो, तो आपके ईगो को आप नीचे डालकर ये बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. बहुत बार घर पे जो मम्मियाँ होती है बोलते हैं नहीं मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी, मुझे कुछ आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, सब काम मैं निपटा लूँगी. क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो ये दिखाए कि मैं सब हैंडल करती हूँ और मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही हूँ. सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. आपसे नहीं हो रहा है, आप बताओ, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प टू क्लीन द वेसल्स टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. बट आप करते हैं वो सब चीज़ें विदाउट आस्किंग फॉर हेल्प, और मन में आप सोचते हैं क्या किसी को दिखता नहीं है मैं इतना काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मदद नहीं कर पाओगे? मतलब आपके विचार ऐसे हैं कि सब आपको हेल्प करने चाहिए, बट आप मांग नहीं रहे हो. सो आप जो क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो, पर आपके मन में विचार ये है कि कोई मुझे मदद करे. सो बी ओपन टू आस्क फॉर हेल्प. हम सभी ऑल परफेक्ट नहीं है, बिकॉज हम परफेक्शन के लिए जा रहे हैं तो हमको दुख हो रहा है. एंड परफेक्शन इज अ मिथ, right? You must seek perfection, but if you don't get perfection, you should not be distressed because of that. परफेक्शन चाहिए बिकॉज हमको ऐसा सिखाया गया है कि हम जो भी करें बेस्ट करना चाहिए, पर बेस्ट करते करते अगर बेस्ट नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज बिलीव मी, विमेन आउट देअर, लेडीज आउट देअर, तुम्ही जरा ऐका मी काय म्हणते. तुमचं शरीर खूप महत्त्वपूर्ण आहे, तुमचं हेल्थ महत्त्वपूर्ण आहे. कारण तुम्ही हेल्दी नाही राहिलास तर तुम्ही दुसऱ्यांची सेवा कसं करणार? हाउ विल यू हेल्प अदर्स? आप किसी को कैसे मदद करेंगे अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी?
तो अगर आप थक गए हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स का हेल्प लीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी है तो आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जो है ना, ये हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि हमको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, खुद के बारे में आपको रिफ्लेक्ट करके देखना है, क्या मैं ईगो के वजह से मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है या नहीं। इज ईगो मेकिंग मी एट अ लॉस। ईगो के वजह से क्या मुझे बहुत तकलीफें हो रही है, और ये तकलीफें अगर आपने डील नहीं की तो ये आपके शरीर के ऊपर ही आएगा। आज हम जो ये लेक्चर पायनियर स्कूल ने किया है, ये इसीलिए किया है कि वी हैव हेल्दी पेरेंट्स एंड वी हैव चिल्ड्रन who grow up in an environment which is conducive for bringing out their maximum potential। अगर जिस माहौल में बच्चा जी रहा है वहां पे पूरा स्ट्राइफ है, स्ट्रेस है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसा, उसका टैलेंट जो है निकल के कैसे आएगा, राइट? तो एक फैमिली एनवायरनमेंट उनको देना बहुत जरूरी है, और वो फैमिली एनवायरनमेंट को बनाना हस्बैंड और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जो माहौल बच्चे को देगा, उनकी पर्सनालिटी उसी तरह से होगा। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक फार्मर था, उन्होंने अपने खेत में एक वाटरमेलन, कद्दू ग्रो करने की कोशिश की, और जैसे ही वो ग्रो हुआ उसके लीव्स बहुत अच्छे निकल आए, और फिर वो जो कद्दू का स्टेम है उसके एंड में छोटा सा एक कद्दू आया। तो ये कद्दू इतना सा हो गया ना, तो उसने पता नहीं किस रीजन के लिए उस कद्दू को एक ग्लास, एक कांच के बॉक्स में डाल दिया, और वो कद्दू मतलब बड़ा होने लगा। तो आपको क्या लगता है वो कद्दू कितना बड़ा होगा? जितना उसकी जगह है उतना ही बढ़ेगा ना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं बढ़ पाएगा, राइट? सो ये बच्चों की जो छवि हम बनाते हैं वो हमारे आचार विचार से बनती है। जो घर पे माहौल होता है उस माहौल में ही वो बनती है। तो इसकी वजह से हम अगर ट्रांसफॉर्म होंगे तो हमारे बच्चे ट्रांसफॉर्म होंगे। तो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन योर चिल्ड्रन। देयर इज नथिंग कॉल्ड पेरेंटिंग। अगर आप अव्वल है, आपके वैल्यू सिस्टम्स, एटीट्यूड्स सब सही है, तो आपके बच्चे को वो मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा ना। अगर एक बच्चा कुछ गलत बिहेवियर करता है तो डेफिनेटली वो घर पे ही पॉइंट आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ चाइल्ड हु हैड द स्टटरिंग हैबिट। स्टटरिंग मतलब तोतला जैसा बोलता था, मतलब उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी। तो मेरे पास लेके आया था, और मैं उसको काउंसलिंग के लिए, ताकि उसकी स्पीच बराबर हो जाए और वो स्कूल में अपने आप को थोड़ा सा उसकी खुद की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाए, इसकी वजह से। क्योंकि वो तोतलेपन के वजह से सब लोग उसको चिढ़ाते थे, उसकी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो गई थी, और फिर वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता था, तो उसकी वजह से उसको फ्रेंड्स नहीं थे। तो सोशल स्किल्स जो है उसकी डेवलप नहीं हो रही थी, और वो हमेशा डरा हुआ रहता था, किसी से बात नहीं करता था, और जितना करना है उतना ही करता था, और किसी के साथ शेयर भी नहीं करता था। इसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर होने लगा। तो इसको लेके आए थे मेरे पास, और जब हमने उनके साथ काउंसलिंग की तो हमको ये पता चला कि ये बच्चे को जो तोतलापन की बीमारी है या जो आदत है, वो आदत जन्म से नहीं है। So it has got nothing to do with his actual psyche। जो हुआ है circumstantial है।
तो जब हम पीछे गए तो हमको पता चला कि ये सिंगल पेरेंट का बच्चा है, मतलब मदर की डाइवोर्स हुई है। और डाइवोर्स क्यों हुई है? क्योंकि माँ को उसकी जो काम था उसकी तरफ ज़्यादा रुचि थी और वो नहीं चाहती थी, वो निग्लेक्ट कर रही थी इस बच्चे को। तो ये बच्चे को जो माँ का प्यार नहीं मिला उसकी वजह से उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ी, और उस इनसिक्योरिटी के वजह से वो ये नहीं मतलब वो बाहर नहीं आ पाया उससे। तो उसकी जो इनसिक्योरिटी थी उसकी वजह से उसका बात करने का मतलब जो समझ रहा था वो, और जो उसको वापस देना है, दैट मीन्स द मैसेज जो वापस देना है उसमें थोड़ा सा लैग होता था। उसकी वजह से वो स्टटर करता था, उसको डर लगता था, उसकी कॉन्फिडेंस चली गई थी। फिर पेरेंट ने सोचा कि क्या करें, तो हमने सजेस्ट किया कि उसको होम स्कूलिंग करें, क्योंकि स्कूल में बच्चे टीज करते हैं तो वो सहन नहीं कर पाता था, तकलीफ होती थी उसको। तो हमने डिसाइड किया कि उसको होम स्कूलिंग करें, और घर पे नानी आने लगी। और ये नानी बहुत ही भावुक थी, बहुत अच्छी थी और उसको बहुत प्यार करती थी। तो उस इंटरैक्शन के वजह से ये बच्चे का जो तोतलापन है वो भी कम हो गया, और बच्चा अच्छी तरह से एडजस्ट होने लगा, नए फ्रेंड्स बनाने लगे, एंड ही केम इनटू द मेन स्ट्रीम स्कूल लेटर ऑन। सो कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली घर में कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम दी मेडिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो अगर बच्चा बार बार सॉरी बोलता है, मतलब वो बच्चे ने कुछ ना कुछ सुना होगा जिसकी वजह से वो शांतता चाहता है, तो उसकी गलती भी नहीं होगी तो भी वो सॉरी बोलते जाएगा। तो अगर हमने माहौल इस तरह से बनाया है कि जो बच्चा है वो जो माहौल में रहता है वो ही पिकअप करता है। सो इफ अ चाइल्ड इज लिविंग विथ क्रिटिसिज्म, दे विल लर्न टू कंडेम। अगर बार बार आप उसको बोलते तुम अच्छे नहीं हो, तुम ये काम ठीक से नहीं कर रहे हो, वो काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो वो भी बड़ा होके ये ऐसा 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 ही करेगा। सो इफ चिल्ड्रन लिव विथ क्रिटिसिज्म, दे लर्न टू कंडेम। इफ दे लिव विथ हॉस्टिलिटी, यानी अगर घर पे वायलेंस बहुत हो रहा है तो वो भी झगड़ालू बनेंगे, राइट? देखो, जो बीज आप बोओगे उसी का पेड़ आपको मिलेगा। एक दिन मेरे ऑफिस में एक पेरेंट आया और बोला मुझे मेरे बच्चे का काउंसलिंग करना है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे है ना पहला आपका एक सेशन लेना पड़ेगा। तो बोले हमारी सेशन की क्या ज़रूरत है, हम तो ठीक ठाक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का प्रॉब्लम है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं करता, उसके ग्रेड्स बहुत कम है, उसको पढ़ने को नहीं होता, बहुत झगड़ा करता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब तक मैं पेड़ को ना देखूं मैं फल के बारे में क्या बताऊं। तो जब तक आपका रवैया किस तरह से है, आपका माहौल किस तरह से है, तो ये देखे बगैर हम बच्चे के ऊपर कैसे काम करें। सो इफ वी हैव टू चेक द फ्रूट्स, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रूट्स, क्योंकि जो रूट्स है उसी की तरह से फल बनेगा, राइट? जितना नर्चरमेंट रूट्स को दिया गया है। आप शायद मुझे बोलते होंगे कि हमारे टाइप में हमारे माँ बाप ने हमको कुछ ऐसे नहीं किया था, हम इतना कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, बट वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सो आपका ज़माना अलग था, ये बच्चों का ज़माना अलग है। ये डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे हैं। These children are of the digital world. They are much, much ahead with respect to our mental sensibilities when we were young. So, जो पेरेंटिंग उस समय की थी वही सेम पेरेंटिंग आप अभी नहीं यूज कर सकते हैं। अभी पेरेंट्स हैव बिकम मोर देन फ्रेंड्स, दे हैव बिकम फैसिलिटेटर्स। तो आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, आपको उनको सिर्फ सपोर्ट करना रहता है उनके चॉइसेस में, और ये दिखाना पड़ता है कि भाई ये अगर आपने एक डिसीजन ली तो वो डिसीजन राइट की तरफ इस तरह होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लेफ्ट की तरह इस तरह का कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस कॉन्सिक्वेंसेस में से आपको क्या चूज करना है, क्योंकि हम उनके ऊपर अपनी फिलॉसफी थोप नहीं सकते।
उन्होंने अपने विचार बनाया है और वो विचार से ही वो आगे जा सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू बी अ सपोर्ट सिस्टम टू द चाइल्ड। आप सपोर्ट कब बनोगे? जब आप खुद को सपोर्ट करोगे ना, जब आपने आपके अंदर जो खामियां हैं उनके ऊपर आपने काम करना चालू किया, बच्चा ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं, राइट? सो parents always want to accuse the child and say this is the problem, but if you take responsibility and say इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, इसकी तह तक मैं जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा कि क्या इशू है मेरे साथ, या तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं जिसकी वजह से तुम में बदलाव आ सके। What more do I need to do so that my child becomes better? अगर एक देखो, ये सब चीजें सोचने के लिए पहले तो आपको अपने प्रॉब्लम्स में से बाहर आना पड़ेगा, आपकी जो चैलेंजेस है उसमें से बाहर आना पड़ेगा। तो अगर बच्चे डर के साथ जी रहे हैं तो वो है ना, कोई भी चीज डर डर के करेंगे। मैं आपको एक बात सीधा सीधा बोल देती हूँ, जो मैं एज अ चाइल्ड गुजरी हुई थी। तो हमारे घर पे बहुत झगड़े होते थे। तो जैसे ही रात को डैडी के घर आने का समय होता था, बेल बजती थी, तो मेरे दिल में धक 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 होता था कि आज क्या होने वाला है, कौन सा बॉम्ब फूटने वाला है। तो वो जो एंजाइटी है ना, काफी साल तक अभी भी जब बेल बजती है तो मुझे एंजाइटी हो जाती है। अभी तो मैंने सीख लिया है उस चीज को, बट देखो ये छोटी सी बात जो एक बच्चे के ऊपर क्या असर कर सकता है, राइट? दूसरी एक बात, मेरी मम्मी जो है बहुत प्यारी थी, बहुत काम किया उसने, इतना काम किया, इतना काम किया कि उसके बच्चों को देखा, बच्चों के बच्चों को भी देखा, बट मैं उसी चीज को लेके सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, मुझे ही सैक्रिफाइस करना है। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी ना, वो मैंने ले ली। इन दी एंड मैं जब भी साइकोथेरेपिस्ट बनी तो मुझे पता चला कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। जरूरी नहीं है मुझे अपना माँ का जिंदगी जीना, क्योंकि मेरी माँ की रियलिटी अलग थी और मेरी रियलिटी अलग है। मैं सशक्त हूँ, मेरे विचार अलग है, मैं मदद मांग सकती हूँ। तो आज भी मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने अपने पति को बोला कि मुझे मदद की ज़रूरत है, आपके बिना मैं सब काम नहीं कर पाऊंगी, और हमारे काम बटे गए। तो पूछने से मिलता ज़रूर है, आस्क एंड यू शैल रिसीव। हम यही माइंड में रखते हैं ना, कैसे पूछ सकते हैं, आई एम नॉट सपोज टू आस्क फॉर हेल्प। नहीं, husbands also can ask for help, wives also can ask for help, children also can ask for help। यही तो टीम बनती है ना। अच्छी टीम कौन सी है? अच्छी टीम वो है जो एक दूसरे को मदद करे। So we come to the next point. If children live with tolerance, they learn to be patient। अगर आप टॉलरेंट है, आप वेट कर सकते हो, तो बच्चों में पेशेंस की क्वालिटी जरूर आएगी। Wait till I have finished this and I will give it to you, then they will learn to wait। But if you want फटाफट ये काम करो, फटाफट ये काम करो, अरे फटाफट किसी से नहीं होता, किसी से बहुत फटाफट होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। If children live with encouragement, they learn to be confident। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। If children live with encouragement, they live to be confident। कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? कॉन्फिडेंस वहां से आती है जब पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। क्या आप अपने बच्चों के लिए कॉन्फिडेंट है, या आपके विचार डर के हैं? ये आगे जाके क्या करेगा, क्या ये फेल होगा? तो आपके विचार बार 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 यही पे जाता है, क्या ये फेल होगा, क्या ये फेल होगा? तो बच्चे उस चीज को पिकअप करते हैं, क्योंकि आपका बच्चा है ना, तो आप कनेक्टेड हो। तो जो विचार आप सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, वो ही विचार आपको मिलेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक पेन और एक पेपर लीजिए और वहां पे आप एक चित्र बनाइए। चित्र मतलब किसी भी तरीका का हो सकता है। मैं तो बस इस तरह का मेरा चित्र होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये मेरा चित्र हुआ,
अम, अगर आप देख सकते हैं तो यस, हाँ यस, आपको दिख रहा है ना, इस तरह से चित्र बनाइए और आपके बच्चे के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके हिसाब से आप वो साइड में ऐसे लिखिए। लाइक मुझे ऐसे लिखना है कि ही इज स्मार्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट। अगर मुझे उसकी जो काइनेस्थेटिक एबिलिटी है उसके ऊपर गर्व है तो मैं बोलेगी ही इज वेरी काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक बोला तो अपने शरीर के भाग को कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से यूज करना, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है या डांस में होता है। सो काइनेस्थेटिक। अगर मेरा बच्चा झूठ बोलता है तो मैं यहाँ पे लिख दूं टेल्स लाइज। मेरा बच्चा नहीं बोलता, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ। ऑलराइट, ओके, तो इस तरह से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आप प्लीज उसमें डालिए। मैं वेट करूंगी 5 मिनट आपके लिए। वो आप जो चित्र ड्रॉ करेंगे आपके बच्चे का और उसमें जो जो खूबियां खामियां आप देख रहे हो इस सब चीजों को आप लिखिए। ये एक्टिविटी जरूर करिए। तब तक मैं ये चैट की जो चीजें हैं वो देख रही हूँ यहाँ पे। कैन आई गेट योर हेल्प प्लीज? ओके, क्योंकि मुझे चैट में जो हो रहा है समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपने ही फोन से चेक कर लेती हूँ कि आपने क्या कमेंट किया है और ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो से लाइक्ड, नहीं अच्छी लगी तो से नॉट लाइक्ड। ये बढ़िया रहेगा। कभी कभी मदद नहीं मिले तो अपने आप को मदद करना बहुत जरूरी है। ये बहुत आइडिया अच्छा आ गया। सो I always believe in the quote which Indira Gandhi says, when you're pushed against the wall, the best in you comes out. Okay. हाँ, आपने चित्र बना दिया? अगर आपने चित्र बना दिया है आपके बच्चों का मतलब उनकी खूबियों के साथ में और उनकी कमियों के साथ में, तो एक सेकेंड, आइडिया। निकिता निकिता निकिता, यस, कमियों के साथ में, तो मिल गया। एक सेकेंड, 121 लोग हैं और ये दिख नहीं रहा है। कोई एक आप में से कोई एक कमेंट दीजिए। तो अगर आप अपने फोन से एक कमेंट दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे दिखाई देगा। ऑल राइट, all right, so 113 people are watching this chat. Thank you so much for being here
and I'm so happy that you have all joined in and I've got this opportunity to speak to you, beautiful souls. This is life designer Vijay Tushar, counselor, psychotherapist, and NLP practitioner, and a life coach. So, having a wide experience with children and parents, I thought it very important that this is a topic that would help a lot of people. How to transform yourself and bring about transformational parenting in the post COVID period, because we believe that this COVID era is going to end soon. So, welcome to all of you. And as the activity suggested, I had told you that you have to make a picture of your child with the strengths and weaknesses of your child, or as you see the child. So, this is the identity that you have of your child, right? Are you happy with this identity? आप एक चीज कर सकते हो जिसकी वजह से आपके बच्चे की आइडेंटिटी पूरा चेंज हो जाए. हम ये देख रहे हैं कि अभी आपका बच्चा किस तरीके से है, राइट? अब आपको ये देखना है कि आप उसको किस आइडेंटिटी में देखना चाहते हो, फ्यूचर में वो कैसा होना चाहिए. सो यू हैव ऑलरेडी मेड के अभी का आइडेंटिटी, राइट? उसके बाद में आप पेज पलट के दूसरा एक आइडेंटिटी बनाओ जहां पे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में ये अच्छी बात होनी चाहिए, ये अच्छी बात होनी चाहिए. तो आप एक बिल्कुल वो एक आइडेंटिटी बनाइए, तो आपको पता चलेगा. एक्सक्यूज मी, मुझे ना उनको बुलाओ ना जरा, जो यहाँ पे था वो लड़का. यस. सो आपने, आपका बच्चा किस तरीके से था उसकी आइडेंटिटी आपने बनाई और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया कि आप जो जो देख रहे हैं. चैट, हाँ, जस्ट ऑन एंड ऑन लिसन से. और आप दूसरी साइड से देख रहे हैं दूसरा पेज में. हाँ, yes, I've got the chat now. Thank you so much, Sachin. Thank you, Sumati Shetty. Thank you, Bhavna. God bless you. All right, तो आपने एक आइडेंटिटी आपके बच्चे का बना दिया और अभी जो वो है, अब आपको दूसरी एक पिक्चर बनानी है जिसमें आप चाहते हैं कि ये क्वालिटीज आपके बच्चे में होना चाहिए. और अगर आपने ये एक्टिविटी की है तो प्लीज राइट यस. So I'll get an idea. अजय सिंह जी, सुमति जी, अगर आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट की है तो प्लीज मुझे बताइए. यस. अब आपको क्या करना है, आपने जो पहला पेज लिया जिसमें आपने अपने बच्चे की आइडेंटिटी एज ऑफ नाउ किया है. भावना हैज कंप्लीटेड द एक्टिविटी. ओके भावना जी, जो आपने पहला आइडेंटिटी आपके बच्चे का किया था वो पेज जो है ना उसको फाड़ दो, उसको फाड़ दो. यानी जो असल में वो अभी है वो आप नहीं चाहते ना, तो उस पेज को आप फाड़ दो. और जो दूसरी आइडेंटिटी बनाई है उसमें और बहुत सारे खूबियां अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिखो. और इसको ना आपका भगवान जैसा समझ के रोज उसको देखना है और यही देखना है कि आपका बेटा जो है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम? सिद्धेश. सिद्धेश. फॉर एग्जाम्पल अगर सिद्धेश के पेरेंट्स ये देख रहे हैं तो जो नया छवि आपने सिद्धेश का बनाया उस छवि को आप फ्रेम करके बिल्कुल जैसे भगवान को देखते हैं उस तरह से देखकर उसमें वो खूबियां आ गई है, ये बात आपको देखनी है. ओके, वो बात आपको देखनी है क्योंकि ये विचार आप उन तक पहुंचा सकते हैं. आप जो भी चाहते हैं आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा. सो और दूसरी एक बात आपको देखना है कि आपने जो भी क्वालिटीज उसमें लिखी है, क्या जो वैल्यूज उसके लिए चाहिए वो वैल्यूज आप में है या नहीं. सी, पेरेंटिंग इज अबाउट चेंजिंग योर ओन सेल्फ.
अगर आपने देखा है एक छोटा सा जो व्हाट यू से कैटरपिलर होता है, वो कैटरपिलर जो है बिल्कुल एक छोटा सा वर्म जैसा होता है और वो ककून के अंदर होता है। तो जब वो ककून के अंदर होता है तो पूरा सा अंधेरा होता है, राइट? एकदम बिल्कुल वो कन्फाइंड हो जाते हैं। तो फिलहाल वो जो बच्चा आपके दिमाग में है शायद आपको कन्फाइंड लग रहा है, बट बिलीव मी वो बाहर आने वाला है। वो बाहर आके जैसे वो तितली इतना ब्यूटीफुल सबको खुशी देती है वैसे वो होने वाला है। सो what is happening is you are allowing the transformation of your child by thinking about what values you want in your child, by seeing his identity as the beautiful butterfly, not as the caterpillar. I'm not calling the children caterpillars now, but what I'm saying is this is a phase of transition. बच्चों का एक ट्रांजिशन का चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज है। तो ये मौका आपके लिए है कि आप अपने आप को ट्रांसफर करो। जितना आप अपने आप पे काम करेंगे उतना आपको बच्चे पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप अगर अव्वल बन जाओगे तो आपके बच्चे भी अव्वल हो जाएंगे। अव्वल विचार रखिए और उसी विचार को आपके बच्चे तक पहुंचाइए। तो जैसे मैंने कहा, भावना जी, आर्यन पवार जी, अरुण, श्री सागर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अशोक सावंत जी, मुझे पता है कि ये इतनी पावरफुल एक्टिविटी है ना कि आप उसकी जो नई छवि बनाई है उस छवि के ऊपर कम से कम 5 मिनट तक कंसंट्रेट करो और आशीर्वाद दो आपके बच्चे को कि वो वैसा बन गया है जैसा आप चाहते थे। अपने आप उसके आचार में बदलाव आएगा, उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा, उसके विचार में बदलाव आ जाएगा, राइट? So thank you for completing this activity. God bless you. We go to the next part. If children live with praise, देखो there are 3 A's जो आपको करने चाहिए अपने बच्चे के लिए। One is acknowledge, second is first is appreciate, second is acknowledge, and third is accept. Appreciate, acknowledge, and accept. So the 3 things that you can do for your kids is appreciate, acknowledge, and accept. अगर आप ये कर सकते हैं, आपकी बच्चे की जो खूबियां है ना ये बार बार कहते रहिए, बट उसकी खमियां जो है उसके ऊपर हम बार बार नहीं बात करेंगे, क्योंकि whatever you appreciate will increase and whatever you criticize will decrease. अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पैटर्न पे। हमारी कम्युनिकेशन पैटर्न 4 टाइप्स की होती है। या तो हम बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, या तो हम बहुत कन्विंसिंग होते हैं, या तो हम एडवाइसिंग होते हैं, या तो हम क्रिटिकल होते हैं, या तो हम एम्पैथेटिक होते हैं, या तो हम सर्चिंग होते हैं। अभी एडवाइसिंग मतलब बार बार नसीहत देना, क्रिटिकल मतलब बार बार जो गलत किया है उसी के ऊपर बोलना। ओके, सो एडवाइसिंग, क्रिटिकल। एम्पैथी इज द बेस्ट वे टू बी इन, जहां पे आप ये मैसेज कन्वे करें कि आप समझ रहे हैं उसकी परिस्थिति क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो आप ये नहीं बोले क्यों फेल हो गया, मालूम था तो पढ़ाई नहीं कर रहा था इसीलिए फेल हो गया। ऐसे थोड़ी करते हैं। अगर आप दैट इज a critical way. But suppose you say, अच्छा फेल हो गया, क्या बात है, कौन सा चीज तुझे समझ में नहीं आता, कौन से सब्जेक्ट में कम आया है, हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, अगर आप एक्स्ट्रा ट्यूशन लेंगे तो आप उसमें पास हो जाएंगे, या मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठूं तो आप पास हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी एंड सर्चिंग। पहले जो स्टाइल लिया था हमने, क्या हुआ, कौन सा सब्जेक्ट में है, कितना करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज सर्चिंग। तो अगर आप सर्चिंग और एम्पैथेटिक होंगे मोर देन एडवाइसिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, then you have a communication pattern which will get across to the heart of your child, and your child will definitely give you the results
दैट यू वांट टू। सो आपका कम्युनिकेशन पैटर्न को आपको जांचना है और ये देखना है कि आपका एडवाइसिंग है ज़्यादातर समय, आपका क्रिटिकल है, आपका एम्पैथेटिक है या सर्चिंग है। आप चेक करके आप मुझे बताइए। सोनाली सावंत जी, आप बताइए आपका कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह से है। थोड़ा सा गौर कीजिए आप किस तरह से अपने बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे थे। तो इज इट एडवाइसिंग, इज इट सर्चिंग, इज इट क्रिटिकल और इज इट एम्पैथेटिक। ये 4 स्टाइल्स लीजिए आप। माधुरी जी जरा देखिए, क्या आप अपने बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते हो या उनकी बात को समझ के उनको पूछते हो कि क्या करना है? दैट इज एम्पैथी। आप सोचिए, इज इट एडवाइसिंग? आप लिखिए वहां पे इफ यू हैव अंडरस्टूड, इफ एनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस 4 स्टाइल्स, अदरवाइज आई विल रिपीट इट अगेन। यस माधुरी जी, आपका स्टाइल कौन सा है बताइए। भावना जी ने मान लिया है कि उनका एडवाइसिंग है ऑलवेज। अच्छा भावना जी, ये सोचिए अगर आपको कोई बार बार नसीहत देता है तो आप क्या करते हो? कान बंद करते हो, राइट? तो अगर आप बार बार नसीहत देंगे तो बच्चा भी यही करेगा। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप एडवाइस देना जरूर है, बट किस तरीके से आप दे रहे हो ये आपको देखना है और कितना दे रहे हो। अगर आप वो जो मेजरमेंट है ना वो बहुत जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा नाप तोल करके आपको एडवाइस करना है और ज्यादातर आप कौन सा ये कर सकते हो? सर्चिंग। साधना जी सर्चिंग है। अब सर्चिंग में भी क्या होता है ना, बहुत अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे ये क्या हुआ, वहां पे क्या हो गया, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। जो लोगों को डिटेल देने की आदत नहीं है उन लोगों को अगर आप सर्चिंग स्टाइल में बोलेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा, राइट? सो सर्चिंग एंड एडवाइसिंग। हाँ, आदित्य जी ने बोला है कि सर्चिंग एंड एडवाइसिंग। तो आप सोचो, क्या आप एडवाइस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सर्चिंग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, एंड कैन यू मेक इट मोर एम्पैथेटिक? एम्पैथी इज सह अनुभूति, नॉट सहानुभूति। सहानुभूति इज सिंपैथी। अगर आप एम्पैथाइज करो, आप भी कभी बच्चे थे ना, तो आप भी ये दौर से गुजर गए हैं। लेट्स से गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, आप पहले से ही बोलेंगे ऐसे नहीं करने का, हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। आजकल के ज़माने में वो नहीं चलता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि माई सन हैड अ रिलेशनशिप विद समबडी। तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया उसको, बोला अच्छा, ये आके बताया मुझे। आई एम लकी दैट ही हैज़ ओपन कम्युनिकेशन विद मी। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बुरा कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, कुछ नहीं कहा। मैं बोला देखो, बी एज फ्रेंड्स बट डोंट कमिट बिकॉज यू डोंट नो योरसेल्फ। जब आप खुद को जानेंगे ना और आपके खुद के जो लाइक्स है डिसलाइक्स है इसको आप पहचानेंगे, उसके बाद में आप सोचो। तब तक आप कोई कमिटमेंट नहीं देना एंड बी गुड फ्रेंड्स। सो उसने ये बात मानी और उसको कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उसके साथ में और मेरी पढ़ाई थोड़ा सा दूर हो रहा है। खुद रियलाइज किया। So you don't have to make children realize anything. You have to just point the direction of your communication so that the child himself take the decision which you want, which you know is best for him. Definitely, as a parent, you will know what is best for your child because he is not knowing himself. But let it come from him, not from you. You direct it. जैसे जो बतख होता है ना, वो बतख जब भी पानी में जाता है तो कितना सुहाना सीन लगता है कि बिल्कुल काम है, पीसफुल है, पर नीचे वो जितना ऐसा पैर ये करता है ना, वो उसी को पता है। तो पेरेंटिंग बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि सामने अपने बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी चीज से डिस्टर्ब हो, भले हो आप डिस्टर्ब। क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस आता है। मेरे पास एक बच्चा आया था जो, और डिस्टर्ब होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है, 90% हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर हमको ये नहीं दिखाना है बिकॉज चिल्ड्रन डिराइव देयर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम यू। अगर आप शांत है, आपका बच्चा शांत होगा।
अगर आप इरिटेटेड है, आप इनसिक्योर है, तो बच्चा भी इनसिक्योर होगा, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल एनर्जी ना। जो ऊर्जा आप देते हैं वो ऊर्जा बच्चा लेगा, राइट। एक बच्चा है, मैं कल ही परसों उसके साथ उसको मिलने गई थी उसके घर पे, and he's been a child who's taken all my courses of public speaking and emotional intelligence and personality development and everything, and बहुत इमोशनल बच्चा था। तो लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हुई थी, ड्रास्टिक चेंजेस हुई थी, जहाँ पे उसको घर बदलना पड़ा, पेरेंट्स बदलने पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं उसको मिलने गई थी, तो मैंने उसको बोला कि तू इस बंदे से बात कर रहा है, एंड आई नो दैट चाइल्ड, ही यूज्ड टू वो फूकता था, गांजा लेता था। तो मैं बोला तू इसके साथ क्यों फ्रेंड्स बन रहा है, तुम भी बिगड़ सकते हो। तो उसने बोला नहीं मैडम, मुझे मालूम है कि मुझे वो लेना नहीं है, एंड अगर आप मुझे ऐसे बोलो कि इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, तो मैं किसके साथ जाऊँ, बिकॉज 30% ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग टू कॉलेज आर into smoking, 30% are into alcohol, and remaining 40% that is there, out of that 20% I don't want to be with them, and the rest 20% are not interested in me. तो मैं फ्रेंड्स किसको बनाऊं, ये बात भी सही है। बट मैंने उससे ये बात पूछी कि आर यू श्योर कि यू हैव द विल पावर एंड द स्ट्रेंथ नॉट टू बी टेम्प्टेड बाय द टेम्पटेशंस ऑफ योर फ्रेंड्स। तो उसने बोला मैडम मेरे को पीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्मोक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने देखा क्या होता है और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। देन आई सेड ओके, बट एटलीस्ट एक तीर तो डाल दिया उसके सर पे कि यू हैव टू बी कॉशियस, और उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे कोर्सेज ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो कभी उस लाइन में नहीं जाएगा। उसकी मम्मी से भी मेरी बात हुई और उसने भी मुझे गारंटी दिया कि ये लड़का कभी ऐसे नहीं करेगा। तो एक वो विश्वास हो जाता है, क्योंकि घर का जो माहौल है, जो वैल्यूज दिए हैं, उसके वजह से ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू से नो टू द टेम्पटेशंस। एंड माय डियर पेरेंट्स, आई अपील ऑफ यू, ज़रूरी है ये बात। और जो भी बच्चे इस राह में जाते हैं वो प्यार के भूखे हैं, वो अटेंशन के भूखे हैं, वो अप्रिसिएशन के भूखे हैं। तो उनको अगर आप वो दोगे तो उनको बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, राइट। मैं अब वापस आती हूँ मेरा ही वही केस में, मैं आई जस्ट गॉट साइड ट्रैक्ड। So I told my son about this thing, and after some time he said, Mama, I think I'm getting too involved and I should pay more focus to my studies. I said, yes, I knew it. So he said, Mama, why didn't you tell me earlier? So I said, if I told you earlier, would you have listened to me? So he said, no. And then he said, thank you so much for making me realize my own mistakes. So वो जो दौर था 6 महीने का, मैं बिल्कुल बतख की तरह थी। I was putting a very bright and happy face and a cool person's face on top, but I was really very scared with it. But एक विश्वास है कि आपने आपके बच्चे को जो संस्कार दिया है वो उसके पास रहेगा, शायद भटक जाएगा वो कभी, पर वापस जरूर आएगा। तो उसको अगर भटका है तो उसको वापस राह पे लाने के लिए जो आपकी सहायता की जरूरत है, इसीलिए हम आज ये सेशन कर रहे हैं ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल पेरेंटिंग पोस्ट कोविड। तो जो भी है हम सीखते रहते हैं और सीखते सीखते हम कुछ बन जाते हैं और हमारे बच्चे हमको देख के इंस्पायर होते हैं। सो ईच ऑफ यू हैव टू बी इंस्पायरिंग टू योर किड्स। तो अपने आप पे काम कीजिए। थैंक यू एरन जेकब फॉर दैट message. It really makes me feel good. Thank you Manoj ji, thank you Ratilal ji, thank you Ashok Sawant. So आपने एक छवि बनाई, आपने अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को एनालाइज किया, आपने डिसाइड किया कि जो आप चाहते हैं आपका बच्चा बने, उसी छवि के ऊपर आप फोकस करेंगे। जब भी आप अपने बच्चे को देखेंगे आप यही देखो कि वो आइडियल बच्चा है जैसे आप चाहते थे। दूसरी बात, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, ये भी आपका निखारने का समय है। जो भी स्ट्रगल आपके लाइफ में आता है आपके निखारने के लिए है, राइट। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आती है
वापस कैटरपिलर और बटरफ्लाई, मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है तो मैं इनकी बहुत सारी स्टोरीज कहती हूँ। तो एक आदमी था जिसको जानना था कि हम किस तरीके से ये जो बटरफ्लाई है वो बाहर किस तरह से आता है। तो उसने एक कैटरपिलर को लिया, जैसे आपने भी बचपन में किया होगा ना, और फिर उसको वो माचिस के डब्बे में रखते हैं और फिर हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो बाहर आता है। तो ये बंदा देख रहा था उसको, सवेरे से लेके शाम तक देख रहा था। तो ये बटरफ्लाई जो है ना, छोटा सा होल है, उसमें से धीरे 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 ऐसे बाहर आ रहा, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो इसको बहुत बुरा लगा, तो उसने क्या किया, एक सीजर लिया और जो उसका ओपनिंग है ना, उस ओपनिंग को थोड़ा सा उसने कट कर दिया ताकि ये बटरफ्लाई जो है बाहर खुल के आ सके और उसकी स्ट्रगल इतना ना हो। तो जब वो बाहर आया तो वो जो बटरफ्लाई था वो अपने विंग्स है ना इस तरह के थे और वो ऐसे ऐसे हॉप कर रहा था, फ्लाई नहीं कर पा रहा था। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? Why was the butterfly not able to fly and it was just hopping around? It couldn't fly and its wings were very shriveled, they were not opened up. तो क्या हुआ होगा आप चैट में लिखिए कि ये बटरफ्लाई क्यों नहीं उड़ा, क्यों नहीं उड़ पाया। आप चैट में लिखिए। Yes. Are we getting some answers? Why is there a lag? No, ma'am, it's working. Ma'am, your internet might be slow. Okay. Yes. So can somebody please type down why the butterfly was not able to fly? No, his wings were not cut. साधना जी, उसका wings cut नहीं था। नहीं, सराउंडिंग्स, सुमति जी, सराउंडिंग्स भी नेचुरल ही थे। क्या हुआ होगा आप सोचो। स्नेहा जी, बिकॉज ऑफ अदर्स हेल्प। यस, यू आर पार्टली करेक्ट। श्रेयस जी, नहीं, वो मेंटल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। Others help. Yes, Sneha ji, you are right. So Sneha Parkar ji, you are right. I think you should get a gift for it. So all my best wishes to you. That's my gift for you now. And may your child be the best. Okay. So wings were not strong. नहीं नीलम पांडे जी, wings were strong, but वो मतलब उड़ नहीं पाता था. Maybe for a long time stay in the box. नहीं, wings were not shrunk. No, nothing wrong with that. बटरफ्लाई को ग्रो करने में नेचुरल ग्रो चेन से जाना देना चाहिए। बिल्कुल सही साधना जी, साधना जी थे ना वो, नहीं पूर्वा जी, वेरी नाइस पूर्वा पालेकर जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। उसने खुद की हेल्प नहीं की। भावना जी, उसका विंग नहीं कट हुआ था, विंग्स वर नॉट स्ट्रेंथेंड। हाँ शांतनु जी, बिल्कुल बराबर कहा आपने। somebody helped him to come out, he came out before time. Rahul ji, you are near the correct answer. Yes, Namrata ji. So मैं आंसर बता ही देती हूँ, आप काफी लोग सही आंसर दिए आपने। तो विंग्स उसका कट नहीं हुआ था, बिल्कुल वो ओपनिंग जो था वो इस आदमी ने कट किया था, तो ओपनिंग बढ़ गया था। अब होता क्या है कि जब ये जो कैटरपिलर है, वो कैटरपिलर उस नैरो ओपनिंग से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को स्क्वीज करता है। तो जैसे ही वो स्क्वीज करता है, उसकी बॉडी के जो फ्लूइड्स है वो पंख के अंदर चला जाता है और वो पंख को उड़ने का एक बॉयंसी मिलता है और उसकी वजह से वो उड़ पाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर जिंदगी में संघर्ष ना हो तो आप निखर नहीं सकते। जरा पूछ लो, पूछ के। चलो
कभी कभी थोड़ा थोड़ा लाइफ में एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ता है। सो अब ये एनवायरनमेंट चेंज किया तो जो मैं बोल रही थी उसका हमको एक नमूना मिला है देखने के लिए कि एनवायरनमेंट भी कभी कभी बदलना पड़ता है। तो जब हम एनवायरनमेंट बदलेंगे तब चेंजेस आ सकते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पर्सनालिटीज़ कि आपकी लाइफ में जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी पर्सनालिटीज़ अलग अलग टाइप के होते हैं व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। तो वर्जिना सटीर जो है ये बहुत फेमस फैमिली थेरेपिस्ट है और उन्होंने बहुत काम किया है बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ में। तो उनका जो काम है उस काम के ऊपर आधारित एक उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है कि कैसा होता है एक अगर हम रोल्स देते हैं फिल्म में जैसे अलग अलग लोगों को रोल्स देते हैं उसी तरीके से फैमिली में अलग अलग रोल्स हम निभाते हैं अननोइंगली। सो एक पैटर्न बन जाता है हमारा। तो कुछ लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लेमर्स। वो हमेशा ऐसा होता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। सो उनको बोलते हैं ब्लेमर्स। ओके, तो वो हमेशा मतलब देख के पूरा ड्रामा होता है एंड देयर इज अ ब्लेम गेम थिंग। फिर कुछ होते हैं जो प्लेकेटर्स होते हैं। पहला मैंने बोला ब्लेमर्स, सेकंड में बोल रही हूँ प्लेकेटर्स। प्लेकेटर्स मतलब वो जो इंसान जिसको हमेशा हार्मनी चाहिए, बिल्कुल चुप रहो, तुम ज़्यादा मत बोलो, शांतता ठेवा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि कोई भी कॉस्ट में शांति होनी चाहिए। शांति उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ब्लेमर्स हैं उनको बस मैंने जो कहा उस तरह से होना चाहिए। तो इनकी मोटिव्स अलग अलग होती है। सो एक है ब्लेमर्स, सेकंड है प्लेकेटर्स और थर्ड है डिस्ट्रैक्टर्स हम बोलते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स मतलब ज़्यादातर कैसे है ना, बच्चे हो जाते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मदर है और फादर है, उनके बीच में अगर कोई स्ट्राइफ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो बच्चा बीच में आके और ही तीसरा कुछ चीज़ बात करेगा, मतलब वो सब्जेक्ट को ही चेंज कर लेगा। उनको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, क्योंकि वो डरते हैं, वो इनसेक्योर होते हैं कि कुछ आगे खतरनाक ना हो जाए, उसके लिए मैं आके बीच में अगर उनकी थिंकिंग ही बदल दे तो क्या होगा। जैसे अभी फिलहाल जो हुआ डिस्ट्रैक्शन हमको, उस तरह से डिस्ट्रैक्शंस बुलाते हैं इंटरैक्शंस में, तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। फोर्थ टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो होते हैं उनको बोलते हैं कंप्यूटर पर्सनालिटी। कंप्यूटर पर्सनालिटी मतलब कंप्यूटर आपसे इमोट करता है, आपको हक देता है, आपको हाई फाई देता है, नहीं ना, पर आप सब मुझे एक हाई फाई दे सकते हो। Thank you for being there and patiently waiting and listening to me. So we have come towards the end of the session. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर पर्सन होता है वो बिल्कुल इमोशनलेस होता है, मतलब वो कभी भी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है। एंड दैट कुड बी पॉसिबली बिकॉज ऑफ सम सेटबैक इन द चाइल्डहुड वेयर दे हैव क्लोज्ड देमसेल्फ। ये बहुत खुद के लिए बहुत डेंजरस होते हैं कंप्यूटर पर्सन्स, जो अपने इमोशंस बिल्कुल नहीं बताते। मतलब उन्होंने एक वॉल बना दिया है अपने आप में और वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे कि फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स जो है, तो एक ब्लेमर हो सकता है, एक डिस्ट्रैक्टर हो सकता है, एक कंप्यूटर बिल्कुल रिएक्शन देगा ही नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं और मेरा काम। तो एक हम वो जो वॉल बना देते हैं ना अपने आप, उनको बोलते हैं कंप्यूटर पर्सनालिटी। तो कंप्यूटर पर्सनालिटी कोई इमोशंस नहीं दिखाएगा, जो काम है इतना करना चाहिए, इतने बजे तक होना चाहिए, बस बात खत्म। काम के आगे और कोई बात नहीं, टू द पॉइंट। सो दे आर कॉल्ड एज कंप्यूटर पर्सनालिटी। और जो 5th पर्सनालिटी है उसको बोलते हैं लेवलर। और हमारी चाहत हमेशा ये होना चाहिए कि हम एक लेवलर बनाएं, यानी जो हमेशा बैलेंस मेंटेन करता है, एक फैमिली को जुड़ा रखता है। इनको हम एंकर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंकर्स जो होते हैं वो हमेशा फैमिली में एक पीस लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपने आप से। मतलब काम भी होना चाहिए, लोगों को वैल्यूड भी फील होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए।
इस चीज को जो मेंटेन करता है लाइक अ कोऑर्डिनेटर, उनको बोलते हैं लेवलर। मैं फिर से कहूंगी, वन इज ब्लेमर, सेकेंड इज प्लेकेटर, PLACATOR, third is computer personality, fourth is distractor and fifth is leveler। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। पहले तो देखो कि आप क्या हो, आप कौन से रोल्स ज़्यादातर निभा रहे हो। अगर आप ट्रूथफुल हो और चाहते हैं कि आज से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि अगर मैं ब्लेमर हूँ या कंप्यूटर पर्सन हूँ या डिस्ट्रैक्टर हूँ या कौन सा था तीसरा वाला, डिस्ट्रैक्टर, ब्लेमर या प्लेकेटर हूँ, तो क्या मैं अभी लेवलर बन सकता हूँ। तो जब तो ब्लेमर्स फाइट कर रहे हैं, उसके बीच में डिस्ट्रैक्टर आता है, तो वो फाइट में थोड़ा सा कमी हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्टर उस चीज को थोड़ा सा डिफ्यूज कर देता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कंप्यूटर पर्सन जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, रिएक्ट ही नहीं करेगा। बट लेवलर जो है वो हर एक की नीड्स, इमोशनल नीड्स जो है, एक फैमिली की इमोशनल नीड्स क्या है, द इमोशनल नीड्स आर टू बी हर्ड। मैं जो कह रहा हूं या मैं जो कह रही हूं, क्या आप सुन रहे हो? ओके, सो दैट इज द इमोशनल नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफ इंक्लूजन। हमको दूसरे की इमोशनल नीड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने जाना है कि आप क्या हो, आर यू अ ब्लेमर? मोस्ट ऑफ द टाइम आप सभी रोल्स डिस्प्ले कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कौन से रोल में हो? आर यू अ ब्लेमर, आर यू अ प्लेकेटर, आर यू अ कंप्यूटर पर्सन, आर यू अ डिस्ट्रैक्टर और आर यू अ लेवलर? गोल तो यही होना चाहिए कि हम लेवलर बने। सो दोज ऑफ यू, हाँ, हाउ टू ओवरकम कंप्यूटर पर्सनालिटी, मैं आती हूँ इस बात पे। हर्षल परिधि बेरवानी, मैं आती हूँ। यस, ओके, सो मैं एक एक पर्सनालिटी के बारे में बताती हूँ। परिधि ने पूछा है कि हाउ टू ओवरकम कंप्यूटर पर्सनालिटी। तो कंप्यूटर पर्सनालिटी मैंने जो बोला, जो न्यूट्रल पर्सन है, बिल्कुल इमोशंस नहीं बताएगा, ये पर्सनालिटी। और तब तक आप लोग प्लीज़ लिखिए, आपको क्या लगता है आप कौन सी पर्सनालिटी हो। प्लीज़ राइट इट इन द चैट सो आई कैन सी। सो जो कंप्यूटर पर्सनालिटी होता है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके पास्ट में ऐसे सिचुएशन हुए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने हर एक को अपने पास आने से रोक दिया है, एक वॉल बना दिया है अपने पास, और किसी को अंदर आने नहीं देते। और वो चीज़ों को एकदम न्यूट्रली, मतलब मेरे इमोशंस को किसी ने नहीं समझा तो मैं किसी का इमोशंस नहीं समझूंगा या समझूंगी। सो ये इसका एक ट्रॉमेटिक पास्ट होगा। तो पहली बात, हमको उस पास्ट से डील करना है और हम हेल्प करते हैं आपको डील करने के लिए आपके ट्रॉमेटिक पास्ट से। अभी NLP जैसी टेक्निक है जिसमें एक सेशन में हम लोग वो क्लियर कर सकते हैं और आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज दे सकते हैं, जिससे आप अपने नॉर्मल लाइफ में आके लोगों से मिलजुल के आपकी पर्सनालिटी को एक लेवलर पर्सनालिटी बना सकते हैं। So there are ways, there are methods. First thing is find the cause. After finding the cause, accept it. After accepting it, take the required measures to work onto it. और ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा अपने आप पे, आपके गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके इमोशंस को जाहिर करना पड़ेगा। सो एक्शन इज द की टू सक्सेस। तो ये सब आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, आपने लिख लिया। अब इसको इस्तेमाल करना, इसको प्रैक्टिस करना। मैथ्स में अगर आपको अव्वल होना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है तो आपके पर्सनालिटी के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी एट अ लॉस। अगर आपने काम नहीं किया तो क्या होगा मैं बताती हूँ। अगर आपने काम नहीं किया तो ये होता है कि आप जो इमोशंस है, ये सब चीज़ें ना आपके अंदर रखेंगे। वो इमोशंस मतलब क्या? एनर्जी इन मोशन।
तो ये जो ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा है। ये नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के भाग में कहीं लीवर पे जाके छुप जाएगा, कहीं दिल पे जाके छुप जाएगा, कहीं पेट पे जाके छुप जाएगा, कभी आंखों में छुप जाएगा, राइट। और उसकी जो बीमारी है वो आपको हो जाएगी और फिर आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, फिर आपके फैमिली को तकलीफ होगा। आपको जाना है ये सब करना है? नहीं ना। इतने पैसे डालने हैं हॉस्पिटल में? नहीं ना। बीमारी लेना है? नहीं ना। तो आपको अपने आप को समझना है और आपको डिसाइड करना है कि जो करेक्टिव स्टेप्स है वो लेना है। तो आपका मेंटल हेल्थ आपके हाथ में है। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रांग होंगे तो आपके बच्चे स्ट्रांग होंगे, एंड वो भी सीखेंगे तरीके जिससे वो अपने चैलेंजेस में से बाहर आ जाए। जिंदगी हसीन है और इस हसीन जिंदगी को जीने का, समझने का और इस हसीन जिंदगी का लुफ्त उठाने का आपको हक है। सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, take care of your mental health, work on yourself, understand your personality, see where you have to change and take action. So get set, go. So I can take some questions of yours. Yes, Paridhi, thank you so much for the acceptance. Thank you Rupali, thank you Namrata for being here. अगर आपके कुछ questions है तो जल्दी आप chat पे लिखिए, तो मैं कुछ questions ले सकती हूँ अभी। Computer guru है ना? Huh? Computer personality. I addressed it. So the computer personality is very clear. If you are a distractor, that child or that person will definitely be having concentration problems. तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि किसके वजह से वो डिस्ट्रैक्टर बना है। आई विल जस्ट शेयर यू अबाउट डिस्ट्रैक्टर थिंग। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी और वहाँ पे मैंने ये देखा था कि जो वाइफ है उसका हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। तो उसने बोला नहीं, और उस बंदे का बर्थडे था उस दिन, तो उसने बोला नहीं मैं तेरे बर्थडे के लिए नहीं आऊँगी, केक नहीं काटूंगी, तुमने मेरी बात नहीं कही, तुमने मेरी इंसल्ट की है। तो ये सब झगड़ा चल रहा था। तो हमने उनसे कहा देखो आप आराम से रहिए, बच्चा है, बच्चा देख रहा है ये सब चीज़ें, तो आप शांत हो जाइए। तो बोली नहीं मैं कैसे शांत हो सकती हूँ, इसने मेरा इंसल्ट किया है, मुझे ऐसे बोल रहा है। एंड बेचारा वो बंदा है वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी मैंने ऐसे बोला। तो बात यही थी कि भाई कोविड का टाइम है और उस बंदे को जाना था अपनी माँ को मिलने के लिए गांव में। तो वाइफ ने कहा आपको नहीं जाना है बिकॉज कोविड है, तो इट इज़ नॉट सेफ टू ट्रैवल सो फार इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इस बात को उस बंदे ने गलत लिया कि मेरे माँ के अगेंस्ट तेरे को कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए तू ऐसे बोल रही है। एंड ही फेल्ट बैड, मतलब उसके जो फीलिंग्स है वो वाइफ ने नहीं अंडरस्टैंड की, और वाइफ की जो सेफ्टी की बात है वो हस्बैंड ने नहीं अंडरस्टैंड किया, और इन्होंने बोलने का तरीका भी लड़ाई की ली, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने उनसे कहा देखो आप एक दूसरे के लिए हो, राइट। जो हस्बैंड है वो ही रहेगा वाइफ के लिए टिल दी एंड, बच्चे तो बड़े होके चले जाएंगे, और वाइफ जो है वो ही रहेगी हस्बैंड के लिए टिल दी एंड। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत करना सीधा बोल दिया वाइफ को। तो उन लोग सोचने लगे, थोड़ी देर के बाद हस्बैंड बोलता है क्या आप मुझे मगरमच्छ बोल रहे हो तो बच्चे ने जंप करके बोला नहीं मैं मगरमच्छ हूँ सो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बच्चे जो है वो ब्लेम लेते हैं अपने आप पे। अगर पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है तो उनको सिर्फ यही बोलना रहता है कि आप प्लीज़ नहीं झगड़िए, मैं रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ, मेरे वजह से हो रहा है ना, तो जो पनिशमेंट देना है मुझे दो, पर आप साथ रहो। So I'm sure all your children are telling you just one message. We want both of you in our life and we want you to stay together so we feel secure and we believe in the concept of marriage. So आपके differences को dissolve कीजिए, resolve कीजिए। resolve नहीं कर सकते तो dissolve कीजिए, because आपको देख रहे हैं आपके बच्चे, और आप जैसे करेंगे बिहेव करेंगे उसी तरह से वो भी बिहेव करेंगे। थैंक यू सो मच विहान, थैंक यू साधना, थैंक यू जगदीश,
Thank you all for being here. If there are any questions, you can still put it in the chat, or I would say that it was a wonderful experience for me with all of you responding so much to the chats and being with us till now in spite of the technology problems. तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजरते रहेंगे. And please check me out on my website. I will be just putting the website here so you can know what I do. It is called www.managementme.com. Yeah, I'm addressing that question. managementme.com. Okay, so we have a question here. If someone in the family is a blamer personality, then what should we do? Wonderful question, Neelam. ब्लेमर पर्सनालिटी तो होता ही है, हम खुद भी कभी कभी ब्लेमर ही बनते हैं. तो ब्लेमर्स का कैसा होता है ना, वो बहुत विजुअल होते हैं, तो उनको ड्रामा की ज़रूरत होती है. तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप कितना भी उनको शांत करने की कोशिश करें, वो शांत नहीं होगा, बट आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो. यानी अगर वो ऐसे बोल रहा है तो आपको विदाउट ब्लिंकिंग उनके आंखों में देखना है, वो शांत हो जाएंगे. मतलब उनकी जो विजुअल पर्सनालिटी होती है, ज़्यादातर ब्लेमर्स जो है उनको दिखता है, देयर विजुअल पर्सनालिटीज, तो उनका जो विजन है ना, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन लाना है. या तो आप वहाँ से चले जाना है, या तो आप कोई चीज़ बीच में लाना है, या तो कोई और टॉपिक चेंज करना है. तो वो 1 सेकंड के लिए जो आपको टाइम मिलेगा ना, तो उस समय उनको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. दे डोंट लाइक डिस्ट्रैक्शंस. तो वो जो ड्रामा वो करते हैं ना, वो ड्रामा का पैटर्न को आपको तोड़ना पड़ेगा. एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली अगर वो भी अग्री करे. यू नो, अभी तो आप जानते हैं ये सब चीज़ें. थैंक यू भावना, फिर से रखना विद मोर टॉपिक्स. ज़रूर, हम मैप से कहते हैं. थैंक यू सो मच, यू हैव मेड माई डे. और ये तब होगा जब आप द इम्प्लीमेंटेशन, या जो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं ये टाइम आपके साथ जो स्पेंड किया, इसका फल ज़रूर मिलेगा जब आपके बच्चे, आपने जो छवि बनाई है ना, उस हिसाब से होगा. तो और भूलना नहीं, जैसे आप भगवान को पूछते हैं, उस छवि को आपके सामने रख के रात को और सवेरे जब भी आप उठेंगे, उसको उस आइडेंटिटी से देखिए. यहाँ पे आई थिंक एक लास्ट एक स्टोरी बोल दूँ. ओके, सो एक लास्ट स्टोरी बोलती हूँ. जो आप अपने बच्चे को देखेगा, जिस आइडेंटिटी से आप अपने बच्चे को देखेंगे, वो वही बनेगा. मैं आपको ये बताती हूँ कि आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंट एंड स्कूल ऑर्लेम, आप जानते हैं. तो मेरा जो बेटा, मुझे जब मैं वहाँ से गुज़रती थी, जब मैं कॉलेज में थी, तभी भी वहाँ का बड़ा ग्राउंड है. उस ग्राउंड को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब मेरे बच्चे जब होंगे ना, मैं उनको यही स्कूल में डालूंगी. जैसे आपको भी बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे पाइनर स्कूल में. तो क्या होता है ना, ये बड़ा बड़ा जब स्पेसेस होते हैं, बच्चे सफोकेट नहीं होते, उनका सोच भी बड़ा होता है, राइट. तो उस वजह से मैंने मन में ऐसे डिसाइड किया कि मेरा बच्चा ना यही स्कूल में पढ़ेगा. और मुझे एक मौका मिला वो स्कूल में, एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर. 3 महीने तक मैं वो स्कूल में थी एज अ टीचर. तो वहाँ पे उनकी जो हेड बॉय है, उसका जो यूनिफॉर्म है, वो एकदम वाइट में विथ यहाँ पे कॉलर है और साइड में सैश है, जैसे नेवी के यूनिफॉर्म्स होते हैं उसी तरह से. तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मेरा बेटा जब होगा ना, वो हेड बॉय होगा और वो यूनिफॉर्म देखेगा. तो जैसे आराधना पिक्चर में वो शर्मिला टैगोर है, उसकी एक छवि बनाती है राजेश खन्ना की कि मेरा बेटा इसी तरह से आर्मी नेवल ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बनेगा, उसी तरह से मैंने उसका एक छवि बनाया था. और मैं सच बोलती हूँ कि मेरा पहला बेटा जब हुआ, तब मतलब काफ़ी टाइम के बाद हुआ, बट जब वो स्कूल में मैंने उसको एडमिशन दी, तो मुझे लगा था वो हेड बॉय बनेगा, बट वो नहीं बना, वो फुटबॉलर बना. और बहुत सारे लोग उसको वहाँ स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट मेरा ख्वाब था वो वाइट यूनिफॉर्म में देखने के लिए. तो मेरा जो सेकंड बच्चा था, वो हेड बॉय बना. और वो जो पिक्चर है, वो अभी भी मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरह से है.
और उसने मुझे बोला था, मम्मी मेरा एक ख्वाहिश पूरा हुआ जब अनाउंस किया गया मोहक करके, तो सभी बच्चों ने उसका नाम लिया, मोहक 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 करके। बोला मुझे वो गूंज, मेरे नाम का गूंज जो है वो देखना था। तो उसका सपना साकार हुआ और मेरा सपना साकार हुआ, क्योंकि उस छवि को मैं इतने साल तक अपने दिमाग में लेके बैठी थी। तो आप जो छवि बनाएंगे आपके बच्चे का, वो सच होना ही होना है। तो मैंने जैसे कहा था, आपने जो भी छवि बनाई आपके बच्चे की, उसको फ्रेम करो और उसको रोज देखो और उसको आप ब्लेसिंग्स दो। आपका ब्लेसिंग्स बहुत काम आएगा। और आज के दौर में बच्चों को जो सुरक्षा कवच दे सकते हैं वो आप ही एज पेरेंट्स दे सकते हैं, और आप ही उनकी जो छवि बनाई है उस छवि को सच कर सकते हैं। यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन child in the image that you see your child as. So carry that image in your heart and bless your child, and believe me, your child will be as you want him to be. Soham, thank you so much. Yes, of course, whenever I'm free I will definitely be coming here. And Rekha ma'am has been so kind enough to keep calling me every time, and it's a wonderful feeling. I love you, Rekha ma'am. Thank you so much. I love you all, and please pass on this love to your children and to each other. Thank you so much. Thank you, VG ma'am, Yeah. for a wonderful session, and I'm sure the viewers have enjoyed the session. And as we are nearing post-COVID new normal circumstances, we have to have a positive framework of mind. And as we have accepted this challenge, it's a good learning curve for everyone. And in life, whatever challenges we come across, we have to learn to face it in a positive manner and be a winner in our journey. So we are trying to set a good example for each one of us, and we all have learned a lot in this COVID pandemic period, and we are trying to live in the new normal and respect our relationships and try to value each soul whom we are meeting across day in and day out. So each one is very precious for all of us. We need to give proper respect and love to everyone. And definitely our journey will be happy. God has good plans for each one of us, and we have to accept God's wish at every point of time and complete our journey in the best manner. So I'm sure you all have enjoyed this session, and definitely we will continue such good sessions in the later period. And this was our first trial. We were stuck for 5-7 minutes due to technical error, but then we are back to normal, and hope you all have made the best of the time, and we will continue later. Thanks BG, thanks to our management for really giving us this opportunity to reach out to everyone. Thanks to our PTA group also for encouraging us for everything.